ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز کو آپ ٹائملی دیکھ لیں۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور میری دلہن میری منتظر تھی۔ اپنی 55 سالہ زندگی میں آج پہلی بار میں نے ایک لڑکی سے شادی کی تھی، لیکن وہ لڑکی مجھ سے عمر میں بہت چھوٹی تھی۔ وہ 22 سالہ لڑکی تھی اور میں 55 سال کا تھا، پر وہ آج دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی میرا انتظار کر رہی تھی اور میں اندر جانے سے بہت گھبرا رہا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ میں اس کے پاس جانے سے شرمندہ ہو رہا تھا تو کہنا غلط نہ ہوگا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی زور زبردستی کی شادی ہوئی تھی، بلکہ یہ شادی تو اس لڑکی نے اپنی مرضی اور منشا سے کی تھی اور وہ اس شادی سے بہت خوش تھی، لیکن میں کچھ خاص خوش نہیں تھا اور اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات تھیں۔ میں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا اور اندر جانے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ میرے پاس اپنا گھر تھا، اپنی گاڑی تھی اور اپنا بزنس تھا۔ ان 55 سالوں میں نے اپنے بزنس پر بہت توجہ دی تھی اور آج اس مقام پر تھا کہ میں بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا، لیکن یہ اچھی زندگی آج تک میں صرف تنہا گزار رہا تھا۔ میرے گھر میں کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ میرے والدین میری شادی کی خواہش میں ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ انہیں بہت خواہش تھی کہ میری شادی، لیکن میں نے شادی نہیں کی تھی۔ ان کی زندگی میں شادی دنیا کا وہ واحد لفظ تھا جسے سن کر عام طور پر لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن اس لفظ سے میں شروع سے ہی گھبرایا کرتا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا تب سے مجھے احساس ہو چکا تھا کہ خوشی کا یہ لفظ میرے لیے کس قدر بھیانک ہے، اور میں کبھی بھی زندگی کے کسی موڑ پر بھی شادی جیسے بندھن میں بندھنے کا خواہش مند نہیں تھا۔ لیکن آج 55 سال کی عمر میں آ کر جو میں نے شادی کی تھی، یہ اس لڑکی کی ضد تھی، وہی لڑکی جو آج دلہن کے روپ میں بیٹھی میرے کمرے میں میری منتظر تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی یہ لڑکی میرے آفس میں جاب کرنے کے لیے آئی تھی اور اس کا دل مجھ پر آ گیا اور اس نے بہت ضد کی، مجھ سے شادی کی۔ میں نے ہر بار انکار کیا تو اس نے اپنی جان دینے کی کوشش کی۔ مجبور ہو کر میں اس کی محبت کے آگے ہار گیا اور میں نے اب شادی تو کر لی تھی، لیکن میں اس کے پاس جانے سے گھبرا رہا تھا۔ میرا حلقہ احباب اتنا وسیع نہیں تھا۔ چند میرے دوست تھے جو اس شادی میں شریک ہوئے تھے۔ شادی کے نام پر نکاح کی چھوٹی سی تقریب میں نے اپنے ہی گھر پہ رکھی تھی۔ سب مہمان رخصت ہو چکے تھے اور اب میں سر پکڑ کر بیٹھا تھا کہ دلہن کے پاس کیسے جاؤں۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر 55 سالہ شخص کی شادی چھوٹی عمر کی لڑکی سے ہو جائے تو وہ شخص خوش ہوتا ہے اور لڑکی اداس ہوتی ہے۔ ایسی شادی کو لڑکی پر ظلم تصور کیا جاتا ہے، لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ یہاں لڑکی بہت خوش تھی اور پرجوش بھی تھی، اور وہ میری محبت میں تقریباً اندھی ہو چکی تھی کہ اس سے میری عمر بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اندر جانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے دیکھا کہ ہانیہ خود کمرے سے باہر نکل کر آئی ہے اور وہ دلہن کے روپ میں بے حد حسین لگ رہی تھی کہ میں اسے دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے بہت دیر کر دی تھی۔ وقت پر شادی نہ کرنا بھی انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ہر وقت گزر جانے کے بعد وہ یہی سوچتا ہے کہ اب آگے کیا کرے گا۔ اب اس بڑھاپے میں اولاد ہوگی تو انسان کب تک زندہ رہے گا اس اولاد کو پالنے کے لیے، اور اس کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ لیکن میرا مسئلہ حالات کا نہیں تھا۔ میں خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں بیوی کے ازدواجی تعلق پورے نہیں کر سکتا ہوں۔ اسی بات کی وجہ سے میں اندر جانے سے گھبرا رہا تھا اور میں اپنی بیوی کا سامنا کرنے سے بھی گھبرا رہا تھا۔ شاید اس سے پہلے میں نے اسے یہ بات نہیں بتائی تھی، کیونکہ شادی سے پہلے یہ بات بتاتے ہوئے مجھے بہت جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ کہیں وہ میری محبت میں اپنی جان نہ لے لے، اپنے آپ کو ختم نہ کر لے اور اس کی زندگی کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ صرف اس لیے میں نے شادی کی تھی اور سوچا تھا کہ بعد میں اسے قائل کر لوں گا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے اور اپنے کسی ہم عمر لڑکوں سے شادی کر کے خوشگوار زندگی گزارے، کیونکہ میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل شاید نہیں تھا۔ وہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس رات کا میں نے بے حد انتظار کیا ہے اور اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلے آئے میرے ساتھ کمرے میں چلیں۔ اس نے اپنا مہندی سے رنگا ہوا خوبصورت سا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں کچھ سوچتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ چل کر کمرے میں آ گیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئی اور میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی میرے جذبات میں ابھار نہیں آیا تھا۔
शायद इतने अरसे बाद मेरे जज्बात ठंडे पड़ चुके थे, या मेरे साथ कुछ और मसला था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं इसीलिए शादी के नाम से घबराता था। मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, हिम्मत तो करनी पड़ेगी और उसको बताना पड़ेगा कि हकीकत क्या है, वरना इस तरह से जिंदगी नहीं गुजरेगी। और अब हकीकत बताने का वक्त है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उसने कहा कि आप मेरी मुंह दिखाई के लिए क्या लेकर आए हैं। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। मुझे तो इन चीज़ों का कुछ पता ही नहीं था, और ना ही तो मुंह दिखाई वाली बात मुझे याद रही, वरना मैं उसके लिए कोई अंगूठी ही तो लेकर आता। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और मैंने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, मुझे इन चीज़ों का होश नहीं है। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम्हें जो खरीदना हो खरीद लेना। मेरी बात सुनकर उसे मायूसी हुई। उसने कहा कि पैसे तो मैं आपसे लेती रहूंगी और खूब शॉपिंग करूंगी, लेकिन एक लम्हा होता है खूबसूरत सा। मुझे लग रहा था कि इस खूबसूरत लम्हे में आप मुझे कोई खूबसूरत सा तोहफा देंगे, मैं अपने हाथों से मुझे अंगूठी पहनाएंगे, या कुछ भी, कोई कंगन या कोई लॉकेट वगैरह। असल में मुझे किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है, मैं तो इस लम्हे को मुकम्मल बनाना चाहती हूँ। फिर उसने अपने हाथों से कंगन उतार कर मुझे दिया और कहा कि ये कंगन आप मुझे पहनाएं। मैं समझूंगी कि आपने मुझे मुंह दिखाई में दिया है, ये सब आपका ही तो दिया हुआ है। लेकिन वो दिखाई वाले तोहफे की बात अलग होती है। मेरी सहेलियां मुझसे पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी कि आपने मुझे मुंह दिखाई में क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया क्या? इसलिए ये कंगन आप खुद ही मुझे गिफ्ट कर दें। मैं उसकी तरफ हैरत से देख रहा था। उसका साथ पाकर कोई भी इंसान खुश हो सकता था। वो एक मुकम्मल खूबसूरत लड़की थी और खूबसीरत भी थी। खुश होकर चंचल शौक लड़की थी। उस पर तो कोई भी आशिक हो सकता था। मैंने सोचा कि मैं किस कदर नाशुक्रा इंसान हूँ, जो बजाय शुक्र करने के अजीबोगरीब सोचों में मशगूल हूँ। मैंने कंगन उसके हाथ से लिया और फिर खुद ही उसके खूबसूरत हाथों में वो कंगन पहनाया तो वो बहुत खुश हो गई। वो शर्माने लगी। वो शायद मेरी मुंतजर थी कि मैं कोई जसारत करूं। मैंने बहुत सोच समझकर हिम्मत करके उससे अपनी बात कह दी। मैंने कहा, देखो हानिया, बज़ाहिर तो मैं देखने में 55 साल का नहीं लगता हूँ। मैं तकरीबन ठीक ठाक जवान मर्द ही लगता हूँ, क्योंकि मैंने अच्छी खुराक खाई है और मैं अपने ज़ाहिरी शख्सियत का ख्याल रखता हूँ। इसलिए मैं 55 का नहीं लगता, 40 का लगता हूँ। और कोई नहीं जान सकता कि मेरी असली उम्र क्या है। मेरी असली उम्र मैंने सिर्फ तुम्हें ही बताई है, क्योंकि तुम शादी की जिद कर रही थी। लेकिन हकीकत यह है कि मेरे अंदर ताकत नहीं रही है। इंसान आसान अल्फाज में बात करता है। मैं अपनी बात कहता रहा कि मैं तुम्हारे इज़्दवाजी को ताल्लुकात पूरे करने की काबिल नहीं हूँ। मुझे लगा था कि मेरी बात सुनकर वो परेशान हो जाएगी, लेकिन उसके चेहरे का इत्मीनान मुझे हैरत में मुब्तला कर रहा था। मेरी बात सुनकर बजाय परेशान होने के वो मुस्कुरा दी और अपने पर्स से एक गोली निकाली। मुझे कहा कि मुझे इस बात का बखूबी इल्म था कि आपकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है और शायद आप घबरा रहे हैं, इसीलिए मैं खास आपके लिए एक ऐसी गोली लेकर आई हूँ। इस गोली को खाने के बाद आप में बहुत ज़्यादा ताकत आ जाएगी और आपकी कमज़ोरी एकदम से गायब हो जाएगी। ये लड़की मुझे हैरान पर हैरान किए जा रही थी। वो इतनी छोटी थी और कैसी इसी इन बातों का कैसे इल्म था। मैं इसी सोच में था। मैंने उसके कहने पर गोली खा ली। गोली खाने के बाद न जाने कैसे मुझे नींद आ गई और मैं गहरी नींद सो गया। सुबह जब मैं जागा तो बहुत चाको चौपन था और वाकई में मुझे अपने अंदर आज मामूल के मुताबिक कमजोरी महसूस नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर बहुत फौलादी ताकत आ चुकी है और मैं अपने आप को जवान तस्वर करने लगा था। मैंने देखा हानिया सो रही है। मैं उसे सोता छोड़कर ऑफिस के लिए चला गया। ऑफिस गया तो सबने मुझे मुबारकबाद दी कि मेरी शादी हो गई है। न जाने क्यों जिंदगी में पहली बार अपने ऑफिस के लोगों का सामना करते हुए मुझे घबराहट हो रही थी। हालांकि ये लोग कई सालों से मेरे साथ ही काम कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों मैं आज किसी से नजरें मिला नहीं पा रहा था। सोच रहा था कि कहीं ना मेरी कमी के मुतल्लिक इन्हें मालूम ना हो जाए। ये लोग तो मेरी ज़ाहिरी शख्सियत से मुझे 40 तक का समझ रहे हैं, हालांकि इन्हें नहीं पता कि मैं 40 से 15 साल बड़ा हूँ, यानी 55 का हूँ। असल में गुर्बत ऐसी चीज़ होती है कि अच्छा खासा जवान जहान शख्स भी गुर्बत में कमज़ोर और लाकिर दिखने लगता है और अपनी उम्र से बहुत बड़ा दिखने लगता है। गुर्बत इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देती है और पैसे की रेल पेल इंसान को बूढ़ा नहीं होने देती। मेरे पास भी पैसे की रेल पेल थी और ये पैसा कमाने में भी मुझे बहुत वक्त लगा था। मैं एक मिडिल क्लास लड़का था और मैंने बहुत होशियारी से छोटा सा बिजनेस शुरू किया और चलते चलते ये बिजनेस आज बहुत तरक्की कर चुका था। मैं बहुत बड़ा ऑफिस भी खोल चुका था और आज मैं बहुत सारे लोगों का बॉस बना बैठा था। यही वजह थी कि शायद मैं अपनी उम्र से छोटा लगता था, लेकिन छोटा लगने से कुछ नहीं होता। हकीकत यही थी कि मैं 55 का था और मैं कमज़ोर हो चुका था, लेकिन आज पहली बार यहाँ आते हुए मुझे अपने अंदर बहुत ज़्यादा ताकत महसूस होने लगी थी। वरना ऑफिस में काम करते हुए भी मुझे थकावट महसूस होती थी और मैं समझ रहा था कि बुढ़ापा मुझसे महवे कलाम है। मैं हानिया के कहने पर जल्दी घर वापस आ गया था और फिर उसे बाहर आउटिंग पर लेकर गया।
और हमने एक खुशगवार जिंदगी का एहसास कर लिया था। हानिया रोजाना शाम को मुझे वो गोली खिला देती थी और मुझे बहुत ज़्यादा ताकत महसूस होती थी और उसके खाने के बाद मुझ पर नींद का गलबा हो जाता था और मैं सो जाता था। एक दिन मैं जल्दी घर वापस आया तो मैंने देखा कि हानिया के किचन में कुछ तैयार कर रही है। मैंने चुपके से उसको देखा तो देखता रह गया। वो खाना तैयार नहीं कर रही थी। खाना बनाना तो मुलाजमों का काम था। उसने शायद मुलाजमों को छुट्टी दे दी थी और खुद ही कोई मुरक्कब बना रही थी। मैं खामोशी से उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और थोड़ा सा गला खंकारा तो वो मुझे देखकर उछल पड़ी। बहुत ही ज्यादा चौंक गई थी। मैंने कहा, तुम इतनी चौंक क्यों गई हो? मैं तो रोज आता हूँ, आज शायद जल्दी आ गया। और ये तुम क्या कर रही हो? मेरे सवाल पर वो घबरा गई थी। फिर उसने कहा कि मैं असल में आपके लिए वही गोली तैयार कर रही हूँ। ये इसी गोली है जो मेरे दादाजी थे बनाया करते थे। मेरे दादाजी शहर के बहुत बड़े हकीम थे। दूर दराज के लोग इनके पास दवाइयाँ लेने आते थे और उनकी दवाइयों से सबको शिफा मिलती थी। मैंने अपने दादाजी से बहुत सारी दवाइयाँ बनाना सीखी थी और ये ऐसी गोली का रास्ता जो मेरे दादाजी ने मुझे बताया था। इसका नुस्खा सिर्फ मेरे पास ही है, किसी और के पास नहीं है। दादाजी की मैं वाहिद पोती थी। इनकी कोई और औलाद नहीं थी, यानी कि मेरे माँ बाप मेरे बचपन में इंतकाल कर गए थे और मैं दादाजी की इकलौती पोती थी और इनका कोई पोता भी नहीं था। इसलिए उन्होंने ये सब मुझे सिखाया था। इनके पास जितना इल्म था मैंने सीख लिया था। इसलिए मैं अपनी खास तवज्जो से इस गोली को बनाती हूँ ताकि आपको फायदा हो। मैंने देखा उसके पास बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं और वो ब्लेंडर में इन्हें डालकर ब्लेंड कर रही थी और बहुत ही इनका पाउडर नुमा शक्ल का पेस्ट बनाकर इसने गोली बनाई थी। और उसने कहा कि वो रोजाना ताज़ा जड़ी बूटियां इस्तेमाल करती है इसको बनाने के लिए। मैंने कहा कि ये तो बहुत नायाब दवाई है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस दवाई का हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए और इस गोली को हम मार्केट में बेचना शुरू कर दें तो बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं और बहुत सारे लोगों को फायदा भी हो सकता है। मैंने कहा कि पैसा तो मेरे पास फिर भी बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गोली को लोगों से फायदा पहुंचे और कमजोरी का शिकार जो लोग हैं उन तक ये गोली पहुंचे और इनमें भी ऐसी फौलादी ताकत आ जाए जैसी कि मुझ में आई है। मेरी बात सुनकर वो सोच में पड़ गई। उसने कहा, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन हर काम का एक वक्त होता है। अभी इस काम का वक्त नहीं आया। मुझे अभी इसी के लिए जड़ी बूटियां ज्यादा खरीदनी होंगी। अभी तो मैं थोड़ी सी बना रही हूँ, लेकिन इन जड़ी बूटियों को खास पहाड़ों से जाकर ढूंढना पड़ता है। ये कोई आसान काम नहीं है। हमें इसके लिए टीम तश्कील देनी होगी। अभी तो मेरे पास दादाजी की मौजूद जड़ी बूटियों का रखा हुआ है, इनका इस्तेमाल कर रही हूँ और इनमें से सिर्फ आपके लिए मैंने रखा हुआ है। अगर हम इन्हें बेचना शुरू कर देंगे तो इसके लिए जड़ी बूटियों की बहुत सारी तादाद की ज़रूरत होगी। इतनी कम जड़ी बूटियों में हम नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि हम बेचना शुरू करेंगे तो इसकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी। लोग इधर से उधर से दवाई लेने के लिए आएंगे और फिर जब हमारे पास दवाई नहीं होगी तो मायूस हो जाएंगे। बेहतर यही है कि हम पहले इसे खुद इस्तेमाल करें और फिर ज़्यादा मिकदार में बनाकर इसे लोगों तक पहुँचाएं। मुझे अपनी बीवी की बातें थोड़ी सी ताज्जुब ज़्यादा लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहाना बना रही हो और मुझे टाल रही हो। मैंने भी ज्यादा उसको खोजने की जरूरत महसूस नहीं की और अपनी बीवी के साथ इधर उधर की बातों करने लगा और वो मेरे सामने ही इस दवाई को बनाकर मेरे साथ कमरे में आ गई। थोड़ी देर बैठकर बातें करने के बाद खाना खाते ही उसने मुझे वो दवाई दी, जिसको खाकर मुझे एक बार फिर नींद का गलबा तारी हुआ और मैं सो गया। अब हर रोज ही ऐसा होता था कि मैं वो दवाई खाता था और जल्द ही नींद की वादियों में गुम हो जाता था। मैं परेशान भी हो रहा था इस चीज से कि मुझ में ताकत तो आ रही है, लेकिन मैं इतनी जल्दी सो कैसे जाता हूँ। मैंने ये बात अपनी बीवी से भी कही कि यार, मुझे बहुत परेशानी हो जाती है। मैं तुम्हारे साथ रात के वक्त टाइम गुजार ही नहीं पाता हूँ और रात को सो जाता हूँ। और बहुत से लोग मुझे इस बात के लिए भी बोल रहे हैं कि मैं दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ एक दफा डॉक्टर से अपना मुआयना करवा लूँ ताकि मुझे मालूम हो सके कि मेरी तबीयत ठीक है या फिर नहीं। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी थोड़ी सी चौंक गई। मुझे वाज़ेह तौर पर महसूस हो रहा था जैसे उसके चेहरे के रंग उड़ गए हों। मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगी, लेकिन मैं उसको नज़रअंदाज कर गया। वो कहने लगी, नहीं, हम लोग आपका मुआयना नहीं कराएंगे। ये सब कुछ आपको महसूस हो रहा है क्योंकि आप इस दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से आप स्मार्ट हो रहे हैं। लोग फजूल में आपको ये बोल रहे हैं। मैं उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, क्योंकि मैं खुद में तवानाई तो महसूस करता था, लेकिन मुझे अपनी तबीयत बहुत गिरी हुई महसूस होती थी। शादी से पहले मैं खुद को बहुत सेहतमंद तस्वर करता था और मैं शादी से पहले थोड़ा सेहत में अच्छा था। लेकिन जब से मैंने इस दवाई का इस्तेमाल शुरू किया था, मैं कमज़ोर होता जा रहा था। लेकिन मेरी बीवी इस कमज़ोरी को स्मार्टनेस का नाम दे रही थी। मैं अपनी बीवी की इन बातों से ठिठक रह गया था कि वो मुझे डॉक्टर के पास मुआयना कराने के लिए क्यों नहीं जाने दे रही। एक रोज़ मैंने सोचा, क्यों ना मैं खुद ही डॉक्टर के पास खामोशी से जाकर अपना चेकअप करा लूँ और इस दवाई के बारे में भी दरियाफ्त करूँ, क्या ये मेरी सेहत के लिए अच्छी है या नहीं। क्योंकि शादी को अब तकरीबन 2 माह हो चुके थे और मुझे अपनी हालत अब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। शुरुआत के दिनों में तो मैं खुद को बहुत तवाना इंसान महसूस करता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरी तबीयत काफ़ी गिरी हुई महसूस हो रही थी।
मैंने ये बात अपनी बीवी को नहीं बताई थी कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उसको ये बात बताता तो यकीनन वो हर रोज़ की तरह मेरी बात को टाल देती और मुझे किसी और जानिब भी मोड़ देती। इस वजह से मैंने दिन में एक वक्त महसूस किया और अपने सारे काम को पसे पुश डालकर डॉक्टर के पास मुआयना करवाने चला गया। डॉक्टर ने पहले तो मुझे हैरत से देखकर इजहार किया कि आप इतने कमज़ोर कैसे हो गए हैं, जबकि आपकी सेहत तो काफ़ी अच्छी थी। मैंने उनको सारी कैफियत बताई और इस गोली के बारे में भी बताया। वो मेरी बात सुनकर कहने लगे कि वो गोली मुझे हर हाल में चाहिए, ताकि मैं देख सकूं कि आप किस किस्म की गोली का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इसको लेबॉर्ट्री में भेजूंगा, इसके बाद इसका तमाम टेस्ट होगा ताकि मालूम हो सके कि इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं, जिसकी वजह से आप तवानाई भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी सेहत गिरती जा रही है। मैंने उनको कहा कि वो तो घर पर मौजूद है, मेरे पास अभी नहीं है। बस आप मेरा चेकअप कर लें, मैं आपको कल तक उस गोली का सैंपल भिजवा दूंगा। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने मेरा मुकम्मल मुआयना किया और मुझे ताकीद की कि आप कुछ दिन तक इस गोली का परहेज करें, क्योंकि हमें वो गोली अच्छे से जांचनी होगी। इसके बाद ही हम आपको इसको खाने के लिए अलाउ करेंगे। मैंने इनकी बात पर इस्बात में सर हिलाया और घर आ गया। जब मैं घर आया तो मेरी बीवी हर रोज़ की तरह अब भी वो दवाई बनाने में मसरूफ़ थी और मुझे देखकर काफ़ी खुशी का इजहार करने लगी। मैं भी रोज़ की तरह इससे मामूल के मुताबिक मिला और इसको ये हरगिज़ भी मालूम नहीं होने दिया कि आज के दिन मैं अस्पताल से होकर आया हूँ। खाना वगैरह खाने के बाद जब उसने मुझे वो गोली खाने के लिए पेश की तो मैं थोड़ा सा इस गोली को खाने से इनकार करने लगा, लेकिन मेरी बीवी का एकदम से वालेहानापन मुझे परेशान कर गया। वो यकदम ही इस बज़िद हो गई कि इसको अभी के अभी खाएं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये अमल मुझे वाकई टटकने पर मजबूर कर चुका था और मुझे यकीन हो गया था कि यकीनन इस गोली के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से मेरी बीवी इस तरीके से रिएक्ट कर रही है। मैंने उसको थोड़ा सा संभाला और कहने लगा, आराम से बैठ जाओ, मैं खाता हूँ। इस गोली को मैंने जैसे ही भरे हुए गिलास पानी में कुछ इस तरीके से उठाया कि यकदम ही उसके कपड़ों पर सारा पानी गिर गया, जिसकी वजह से वो अपनी नशिस्त हड़बड़ाकर उठ बैठी और मैं फौरन ही माजरत करने लगा और इससे कहा कि जाओ तुम कपड़े चेंज कराओ, जब तक मैं इस गोली को खा लेता हूँ। उसने मेरी बात को अनसुना किया और मुझ पर जोर देकर कहने लगी, नहीं, पहले आप मेरे सामने इस गोली को निकलें, इसके बाद ही मैं जाकर कपड़े तब्दील करूंगी। लेकिन मेरे जोर देने पर उसको मजबूरन पहले कपड़े तब्दील करने के लिए जाना पड़ा और इससे पहले ही मैंने वो गोली अपनी पैंट की जेब में डाल दी। वो फौरन ही चंद मिनट में कपड़े तब्दील करके आ गई और उसके आते ही उसने मुझसे यही पूछा कि क्या मैंने गोली निकल ली है। तो मैंने फौरन से इस बात में सर हिलाकर कहने लगा, हाँ, मैंने गोली को निकल लिया है, तुम परेशान ना हो, मेरा बस ये कहना था। और वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। हर रोज की तरह आज भी मैंने वैसे ही नाटक किया और मैं सो गया। अगले रोज मैंने फौरन ही वो गोली लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भेज दी, लेकिन जब शाम तक मेरे पास उस गोली की रिपोर्ट आई तो मेरे औसान खता हो गए। मेरे जहन में गुमान में भी नहीं था कि मेरी बीवी, जो मुझसे इतनी मोहब्बत की दावेदार थी, वो मुझे स्लो पॉइजनिंग दे रही थी, यानी धीरे धीरे मौत की तरफ मुझे धकेल रही थी। वो रिपोर्ट देखकर मेरे रंग उड़ गए थे। मुझे अपनी बीवी के इस करतूत पर यकीन नहीं आया और मैं फौरन ही वो रिपोर्ट थामे घर आ गया। मेरी बीवी हर रोज की तरह आज भी वो गोली बनाने में ही मशगूल थी। मैंने यकदम ही उसका बाजू पकड़ा, अपनी गिरफ्त में उसको थामा और उसको पीछे की जानिब धकेला। वो मेरे इस अमल के लिए तैयार नहीं थी और इसी वजह से बहुत बुरे तरीके से जमीन दोज हो गई। मैंने गुस्से से फुंकारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये जुल्म करने की, जबकि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत और इतना प्यार दे रहा हूँ, तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ, और तुमने मेरे साथ ये जुल्म किया। तुम्हें शर्म ना आई मेरे साथ ये सब कुछ करते हुए। वो मेरी बात सुनकर एकदम ही हैरान हो गई और उसके चेहरे के रंग उड़ने लगे। वो मुझसे घबराती हुई पूछने लगी कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आपको इतना गुस्सा आ रहा है। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज किया और गुस्से से फुंकारते हुए कहने लगा, तुम मुझे धीरे धीरे मौत की तरफ धकेल रही थी और ये बोल करके इस गोली में मुझ में तवानाई आएगी और हमारी इस दवाजी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। मुझे पहले ही तुम पर शक हो जाना चाहिए था जब तुम मुझसे मोहब्बत की दावेदार हो रही थी। मैं खुद हैरान था कि एक 22 साल लड़की एक 55 साल मर्द से मोहब्बत की दावेदार कैसे हो सकती है। मुझे अब समझ आया है, तुम मेरी दौलत के पीछे थी। जब मैंने ये तमाम बातें उसके गोश गुजार की तो वो बिल्कुल ही हैरान हो गई और खड़ी होकर कहने लगी, आपको ये तमाम बातें कैसे पता चली, जबकि मैं ये काम बहुत खामोशी से कर रही थी। इसके लहजे में कोई लचक नहीं थी। मैंने उसकी बात सुनी और कहने लगा, तुम बहुत एतमाद से ये बात मुझसे पूछ रही हो ना। अब तुम जाओगी जेल, क्योंकि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है और तुम जो मेरी दौलत के पीछे थी, इसमें से तुम्हें फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। ये मेरा कहना था कि वो यकदम ही गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, मुझे माफ कर दे, मैं ये करना नहीं चाहती थी, बस मैं मजबूर हो गई थी। मेरी आंखों पर दौलत की पट्टी बन गई थी, लेकिन मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा है, ये भी इसका ड्रामा ही था। मैंने फौरन ही पुलिस को इत्तला की और इस लड़की को इनके हवाले कर दिया। अगले रोज मैंने इसको तलाक देकर अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया था।